produced is then dipped in a water container through a process of quenching. Then it is further polished to produce a dangerous weapon like the famous Damascus sword, which is so sharp that it can even cut a cotton pillow. The swords used by Indians in 1857 freedom struggle were also made of wood steel and were so strong that it was very difficult to dispose it of. The sword of Tipu Sultan and the rockets used by him are the additional examples of glorious Indian iron technology. Coins have symbolized an important aspect of India's history and culture. Coins rendered business transactions easy. The ancient Indian coins were mainly made of lead, brass, copper, bronze, silver, gold, etc. Early coins were small, thin, roughly rectangular, oval, round or square pieces of metals, possibly of constant predetermined weight, possibly of constant symbols imprisoned on the surface. Ancient Indian coins were made using techniques like die striking, droplet, punch-marked, casting, which was used by different kingdoms and dynasties over the centuries. Ayurveda, aptly defined as the science of life, is another ancient technology which deals with 8 aspects and hence is called Ashtanga Ayurveda. The 8 aspects are Kaya Chikitsa, which deals with general treatment of the body with ordinary medicine, Shalakya Tantra, which deals with examination and treatment of eyes and ENT, Shalya Tantra, which deals with surgical operations, Kumar Bhutya, which deals with gynecology, obstetrics and pediatrics, Vishatantra, which deals with toxicology, Bhutavidya, which deals with spiritual therapy and psychiatry, Rasayan, which deals with medicine for rejuvenation, and finally, Vajikaran, which deals with virilification therapy. These medicines are prepared from herbs and have a holistic approach. Rasa Shastra, which was also known as alchemy, is the ancient synonym of chemistry. Nagarjuna, who is supposed to be the founder member of this science, regularized the use of various metals for the treatment of diseases. He was the first to bring about the conversion of ordinary metal into noble ones like conversions of copper to gold. Another achievement is preparation of oxides of metals. These oxides were and are still used for rejuvenation and purification of the body. These were said to be significant for immortality and for keeping one young, cheerful and evergreen. Surgery also is not new to India. During the wars, soldiers or the warriors used to get injured. To heal these injuries, minor operations or surgeries were practiced. Sushruta, the first surgeon in the world, is believed to have practiced a variety of surgical procedures, including performing plastic surgery and practicing Ayurveda. In ancient India, cosmetics and perfumes were used for the purpose of worship and sensual enjoyment. The ancient traditional method is used in the making of attars at Kannauj. The attars of Kannauj have received world acclaim and are revered worldwide both as medicines and perfumes. One of the most important mathematical Indian contribution is the invention of zero by Aryabhatta around 500 AD. Today, zero is the foundation for all modern technology, especially digital electronics. It is not hard to imagine how the modern man would have used computers, calculators, mobiles and other digital electronics without the use of zero.
Today, our Technology Heritage Gallery at Nehru Science Centre, Mumbai brings forth the misconception that India has been following technologies invented by the West. It gives us pride to be Indians who have opened the doors of our pioneering technologies to the West. सन 1977 से मुंबई में स्थापित नेहरू विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के बारे में जानकारी को और अधिक रोचक और मनोरंजक बनाना है। आज मुंबई नेहरू विज्ञान केंद्र में विभिन्न विषयों पर आधारित कई दीर्घाएं हैं, जिनमें से एक है हमारी प्रौद्योगिकी विरासत। इस गैलरी में भारत में पुराने समय में उन्नत हुई प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी मिलती है। आदि मानव शिकार और भोजन जमा करने में ही व्यस्त रहता था। ढेर सारी फुर्सत के साथ जीवन जीने का यह सबसे आसान तरीका था। पाषाण युग के मानव ने जीवन का यह तरीका छोड़ नियोलिथिक युग में खेती बाड़ी द्वारा भोजन पैदा करना शुरू किया, जो कि मानव द्वारा विकसित पहला उद्योग है। कच्चे कृषि उत्पादों को उपभोग करने से पहले इन्हें इस्तेमाल लायक बनाने और जमा करके रखने की जरूरत पैदा हुई। इसके लिए मानव ने बर्तन बनाने की कला विकसित की, जो कि मानव द्वारा विकसित उद्योगों में मील का पत्थर साबित हुई। आगे चल मानव जीवन कृषि पर अधिक निर्भर हो गया। फिर सभ्यताएं विकसित हुईं और आबादियां स्थापित हुईं। आज से 5000 से 7000 साल पहले मौजूद 6 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में उभरा। हड़प्पा संस्कृति की खास पहचान मिट्टी के कलात्मक बर्तन ही हैं। खुदाई के दौरान उस समय के मिट्टी के बर्तनों के कई नमूने मिले। देखा जाए तो हड़प्पा की खुदाई में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े ही बड़ी मात्रा में मिले। उस समय सादा और रंगदार दोनों तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये बर्तन कुम्हार के चक्के पर बनाए जाते थे, फिर इन्हें काले रंग से सजाकर तंदूर में पकाया जाता था। पुराने समय के भारतीय कुम्हार तापमान की अच्छी जानकारी रखते थे और बर्तन पकाने की तकनीक से अच्छी तरह से वाकिफ थे। आज के ग्रामीण कुम्हार भी उसी पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। हड़प्पा अपनी शहरी योजना की वजह से एक अलग पहचान रखता था। उनकी शहरी योजना के मुख्य पहलुओं में से एक है 10 मीटर चौड़ी सड़कें, जो कि उचित कोणों पर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर शहर के बीचों बीच दौड़ती थीं। मानवीय आबादी या उनके घर आमतौर पर प्रचलित 40-20-10 और 30-20-10 की लंबाई चौड़ाई वाली, या यूं कहें
4-2-1 और 3-2-1 अनुपात की पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। ये ईंटें चौड़ाई में 2 और ऊपर लंबाई में 1 रखी रहती थीं। सारा शहर गंदगी के निकास के लिए भूमिगत निकासी सुविधा से जुड़ा हुआ था, जो कि 1 मीटर गहरी थी। छोटे छोटे कुओं की मदद से पूरे शहर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की सुविधा थी। हर घर में एक बैठक, रसोई और गुसलखाना था। कुछ घर 2 मंजिला और कुछ तो तिमंजिला बने हुए थे। हर घर को हवादार बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया था, जिसके लिए घर के बीचों बीच खुला स्थान छोड़ा गया था। किला शहर का एक खास हिस्सा था, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। किले में या तो शहर प्रमुख वास करता था या फिर इसका प्रयोग धार्मिक उत्सवों के लिए किया जाता था। उस समय शहर योजना बनाने वालों ने शहर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा था और इसके लिए शहर की किलेबंदी शहर में आने जाने के लिए बड़े बड़े फाटक बनाकर की गई थी। उस समय की अद्भुत भवन निर्माण कला का एक और उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का विशाल गुसलखाना। ये 56 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है और इसमें एक 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरी पानी की हौदी थी, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसे पकी ईंटों से बनाया गया था। पानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए गंदे पानी की निकासी और नया साफ पानी भरने की व्यवस्था थी। ये सब पहलू दर्शाते हैं कि उस समय एक प्रशासनिक व्यवस्था जो कि शहरी योजना के नियम बनाती थी और उसी के अनुसार व्यवस्थित शहर बने। जैसा कि स्पष्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार और उद्योग में उन्नत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हड़प्पा वासियों ने ही समुद्री जहाजों की आवाजाही और लंगर डालने के लिए लोथल में, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, पहला बंदरगाह बनाया। भारतीय नौका निर्माण और नौका परिवहन कौशल 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर हड़प्पा संस्कृति के समय से है। उस दौरान बनाए गए जहाज विषम सामुद्रिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थे। यह बात पूरे भारत में उपलब्ध विभिन्न पुराने भित्ति चित्रों और उसी समय की मुहरों से साफ झलकती है। बंदरगाहों और नौकायन की सुविधाओं से विदेश व्यापार ने प्रगति पाई। मिस्र की ममियां जिस सूती कपड़े में लिपटी होती थीं, वो भारत से ही जाता था। ग्रीस वासी कपास के लिए सिंदम और बेबीलोन वासी सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे, जो कि यह दर्शाता है कि कपास भारत क्षेत्र से ही जाता था। अपने बाएं कंधे पर शॉल जैसा वस्त्र धारण किए हुए मोहनजोदाड़ो में मिली भिक्षु की प्रतिमा भी उस समय में वस्त्रों के प्रयोग का एक अलग प्रमाण दर्शाता है। खुदाई के